फ्रेंड्स, मैं हूँ सुधा झा। मेरा प्रोफेशन है टीचिंग। फॉर लास्ट 22 ईयर्स मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ बच्चों को। तो चलिए मैं और आप इकोनॉमिक्स की जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं। Before this particular video, I have told you how to make the formula. So you have learned to make the formula. Now when we calculate national income, we are calculating national income by 4 different methods. The first method which I am going to use today for you to learn is the income method. There are 3 names for income method. I can call it as factor payment method, I can call it as distributive share method, I can call it as income method. Because everything what I am going to write here, or I am going to calculate the income, it means the payment which is made to the factor people. It means those who are providing land, labor, capital or entrepreneurship, what factor payment is made to them. That is why we are going with the income method. Let us study the formula. When we are calculating national income by income method, actually the formula which you have to learn is NDPFC, correct, which is also known as domestic income. Now what is the formula of NDPFC? NDPFC means COE plus OS plus MI. COE means compensation of employees. OS means operating surplus. MI means mixed income. When I speak COE, if it is not written in the exam as compensation of employees, the word can be compensation or it can be emoluments of employees. Emoluments of employees. But if this word is not given, then how will you solve this numerical? Most of the time this won't be given to you. Then they will give you the word wages and salaries. So wages and salaries, whether it is paid in cash or it is paid in kind, you have to add everything. Whether wages and salary, only wages given, only salary is given, no problem. Or both of them are given, you add both of them. Whether in cash or in kind, you have to add it up. Plus, what should I add in this particular? Then if they have given social security contribution by employer, contribution by employer. If this by is not given, or if this employer is not given, instead of employer if they have given employee, don't take. वो एम्प्लॉय खुद दे रहा है, वो अपना इंश्योरेंस कर रहा है, वो खुद का पैसा जा रहा है। इसमें जो भी फैक्ट्री या फर्म जिसमें लोग काम करते हैं, वो उसको जो भी चीज़ देगी वो सारा चीज़ कंपनसेशन या एमोलमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ आएगा। कुछ कंपनी क्वार्टर देती है तो क्वार्टर भी इसका एक पार्ट है, वो काइंड में आता है, उसको भी हम ऐड करेंगे। अगर उन्होंने दिया कि मेडिकल अलाउंसेस दे रहे हैं तो वो भी इन काइंड है, या हम मेडिकल बिल जमा कर रहे हैं उसका कैश हमें मिल रहा है तो वो भी मेरा कंपनसेशन है। कौन दे रहा है? कंपनी दे रही, तो उसको भी मैं ऐड करूँगी। So when it is given like this, you have to add wages and salary along with social security contribution by employer, not by employee. अगर वहाँ पे employee लिखा है तो दिमाग में कर लेना this is wrong. Employee को नहीं लेना है, किसको लेना है? Employer को लेना है. Then you will get COE. See the next word I am using here, OS. OS stands for operating surplus. It stands for operating surplus. ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब ऑपरेट करते समय क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम रेंट पे करते हैं लैंड के लिए, फिर हम इंटरेस्ट देते हैं जिससे भी हम पैसा लेते हैं कंपनी में उसके लिए, फिर हम रॉयल्टी देते हैं और उसके बाद प्रॉफिट का पार्ट हम शेयर करते हैं। ठीक है, तो रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। कभी कभी चारों दिया होगा तो हम चारों ऐड करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस करके वर्ड नहीं दिया रहता मोस्ट ऑफ द टाइम। 99% ये एग्जाम में नहीं रहता, आपको ये पार्ट्स रहेंगे, या इसमें से अगर 2 ही पार्ट दिया है तो आप उस 2 पार्ट को ही ऐड करेंगे। ज़रूरी नहीं कि चारों ही दिया होगा। पर इसमें भी क्या प्रॉब्लम आती है ना, ये सब एकदम शरीफ बंदे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे बुद्धू और बदमाश बंदा हमारा प्रॉफिट, आपके आंसर को रॉन्ग कराने के लिए। क्यों? प्रॉफिट के बहुत सारे नाम होते हैं। इट कैन बी आस्क्ड एज, प्रॉफिट को हम डिविडेंड भी कह सकते हैं क्योंकि ये डिविडेंड के रूप में भी होता है। ये किसके रूप में होता है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, या इसको मैं नेट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स भी कह सकती हूँ। क्या बोल सकती हूँ उसको? नेट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। या मैं क्या कर सकती हूँ? नेट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स।
या हम सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर। फिर क्या होता है, प्रॉफिट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड हो गया। कंपनी जो टैक्स पे करती है उसको हम कहते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स, ठीक है, ये भी इसके पार्ट। इसमें से जो भी दिया होगा, अगर प्रॉफिट दिया है तो ये सब पार्ट्स को मत लिखना, एग्जाम में या फॉर्मूले में इसको नहीं डालना है। पर अगर प्रॉफिट नहीं दिया, इसमें से जो जो चीजें दी हैं, एक भी दिया होगा तो हम उसी को प्रॉफिट की जगह रिप्लेस करेंगे। कभी कभी 2 दिया होता है, ढूंढोगे क्वेश्चन में कहाँ दिया हुआ है, एंड देन यू विल बी मूविंग ऑन विद दैट। तो ये हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। थर्ड हो गया एमआई। एमआई का फुल फॉर्म है मिक्स्ड इनकम। इसको हम इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहते हैं। कुछ लोग अपनी दुकान खोल लेते हैं, ठीक है, और वो खुद ही मैनेजर का भी काम करते हैं और सेल्समैन का भी काम करते हैं, तो इसीलिए उनकी जो इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड है। वो सारा इनकम, चाहे वो मैनेजर का काम करे या इनकम, या वो लेबर का काम करे या वो अपने क्लीनर का काम करे, तो इसीलिए उसकी इनकम को कहते हैं मिक्स्ड इनकम। जब हम ये सब चीज़ निकालिए तो ये निकल गया एनडीपीएफसी। तो आपको याद रखना है एनडीपीएफसी इज इक्वल टू सीओई प्लस ओई प्लस एमआई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। कैसे निकलेगा वो मैंने आपको बताया। और सीओई में मैंने बार बार बोला है, जो भी कंपनी कुछ भी देती है अपनी एम्प्लॉयज़ को, कुछ भी देती है इन कैश या काइंड, चाहे वो मेडिकल अलाउंसेस हो, ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो, पीएफ हो, अगर वो कंपनी पे कर रही है, दैट ऑल थिंग्स कम इन द पार्ट ऑफ सीओई। इसलिए बार बार एम्प्लॉयर को याद रखना है, एम्प्लॉय हो रहा है तो नहीं लेना है, उसको आप नेग्लेक्ट करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 पार्ट्स आपके हो गए मिक्स्ड इनकम। पर अगर क्वेश्चन में पूछा है नेशनल इनकम, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपीएफसी, और डोमेस्टिक इनकम क्या है हमारा, एनडीपीएफसी। इनकम मेथड का फॉर्मूला हम डोमेस्टिक इनकम से ही लर्न करते हैं, इनकम मेथड का फॉर्मूला डोमेस्टिक इनकम से ही लर्न करते हैं। पर एग्जाम में अगर आ गया कि कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो पहले आप डोमेस्टिक इनकम निकालेंगे। ये पूरा निकल गया, एनडीपीएफसी निकल गया। तो अब एनएनपीएफसी कैसे निकलेगा, फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला हमने किसका पढ़ा, एनडीपीएफसी का। फॉर्मूला अभी आपने किसका पढ़ा, एनडीपीएफसी का। अब इस फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाओ। फिर एफसीएफसी सेम है, अभी आपने याद ही किया था, सेम है। प्रोडक्ट सेम है। यहाँ डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक क्या है, छोटा, छोटे को बड़ा बनाने के लिए प्लस। डोमेस्टिक और नेशनल के डिफरेंस को क्या कहते हैं, एनएफवाईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। फिर दोनों में नेट नेट है, कोई चेंज नहीं। यानी कि जो आंसर इसका आया, आपने जब ये फॉर्मूला यूज किया था, लास्ट में आप ये लिखोगे जो पूछा गया एग्जाम में। कभी भी जो फॉर्मूला मैं सिखाऊंगी वो फॉर्मूला आपको यूज करना है, उससे आंसर निकालना है। और फिर देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया। क्वेश्चन में पूछा गया नेशनल इनकम यानी कि एनएनपीएफसी, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब इसका आंसर जो भी आ रहा है, जो भी डैश डैश आया, उसमें हम इसका जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया है उसको एड अप कर देंगे, देन यू विल गेट एनएनपीएफसी। आई होप इट इज क्लियर।